Even the best of human beings are capable of nothing more than great empathy when they see someone in distress. Mahapurush like Guruji can, however, take on the sufferings of others upon themselves to lessen their pain and make their faith sturdy. Dr. Brigadier Saini experience with Guruji bear the statement out the doctor, a specialist in medicine, is not only a first-hand witness to the divine healing power, but also its beneficiary. Spooning out spondylitis. Dr. Saini was in Jalandhar and his house was near Guruji temple. But he could not have darshan of Mahapurush initially. When he did, it was as if blessings had unendingly started flowing into his life. The doctor's wife, a devotee of Guruji, had cervical spondylitis, which led to severe neck pain. She was being treated with physiotherapy and analgesics. This was towards the end of 1996, and Guruji was in Panchkula, a township adjacent to Chandigarh. One day the doctor was with Guruji and the Sangat. Dr. Saini's responsibility was to take a round of the ICU in the evening, and he asked Guruji whether he could go to the hospital. Guruji reassured him that all his patients were well, but allowed him to go. When the doctor returned, Guruji said he had cured his wife. The doctor was told that Guruji had applied a spoon. The doctor calls it Guruji's all-in-one gadget. His X-ray machine, echocardiograph, ultrasound and CT scanner. To the back of his devotee's neck, relief was instantaneous and no other treatment was ever required. ये करोगे आपको सुनीता, आपको इस फैक्ट कुछ भी अपना सत्संग शेयर करें प्लीज। ठीक है जी, जरूर। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर सैनी, हम लोग गुरुजी से 1996 में गुरुजी से जुड़े और मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे वहां पर कमांड हॉस्पिटल में, और वहां से हम हर रोज जाते थे। और गुरुजी की कृपा समझ लो या गुरुजी का प्यार समझ लो कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा, और हम लोग ऑलमोस्ट डेली जाते, हर रोज जाते थे। उस टाइम पे गुरुजी जनरल आहूजा अंकल के घर में रहते थे, और एक दिन वहां बैठे हुए दर्शन कर रहे थे गुरुजी के, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी मैं जाके हॉस्पिटल राउंड लगाया हूं। तो गुरुजी कहते डॉक्टर साहब की कोई लोड़ नहीं है, सब ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बैठ गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते कि जाके राउंड करया। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੋਲਾ हुआ था गुरुजी ਨੂੰ कि मेरे वाइफ ਨੂੰ स्पॉन्डिलाइटिस की काफी पेन होती है और काफी ट्रीटमेंट करता है, बट अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, और जिसले मेरे हस्बैंड चले गए राउंड ਲਈ, तो गुरुजी ने कहा कि मनु कहते चल आ मेरे कमरे च। तो गुरुजी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ कमरे च गई, और गुरुजी ने अपने बेड ਤੇ बिठाया और एक चम्मच लिया, और चम्मच ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟ ਟਵਿਸਟ ਦਿੱਤਾ, और ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ठीक कर ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो मैं गुरु जी का धन्यवाद किया, थैंक्स किया, क्योंकि मैं तो गुरु जी तो मंगया नहीं सी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला और गुरु जी की कृपा की उन्होंने मनु तो ठीक करता। वो दिन और आज का दिन उस तरह की पेन मनु उस तो बाद कदी नहीं हुई। और जिसले मेरे हस्बैंड आए तो गुरु जी कहते कि डॉक्टर साहब मैं आंटी नु ठीक कर देता। तो मेरे हस्बैंड ने भी थैंक्स किया और गुरु जी दे इत्थे बैठ के। और एक्चुअली मैं एक गल कहांगी कि मैं कदी सत्संग किया नहीं। एक बारी गुरु जी ने दरबार च लेटली सारे जने कुछ लोग बैठे दे, गुरु जी कहते चल उठ सत्संग कर। और उदों मेरी बिटिया दी भाभी दे बेटी ब्लैस की सी गुरु जी ने, तो गुरु जी कहते
तू दसिया नहीं कि ओरे बेटी हुई है। मैं कहा सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई। कहते चल उठ के फिर सत्संग कर। और मैं एकदम कंब रही थी अंदरों, आवाज नहीं निकल रही थी, पर एनी हाउ पूरा सत्संग सुनाया। गुरुजी कहते चल बह जा तू, तेरे तो नहीं सत्संग होता। तो पर फिर भी मैं कोशिश करांगी, अगर कोई गलती हो जाए कुछ तो मैं आप सबसे माफी मांगूंगी। तो उस वक्त मैं पढ़ती हैं, गुरुजी प्लेस डॉक्टर, हाँ जी, गुरुजी प्लेस डॉक्टर गुड हार्ट। A year later, it was doctor himself who was treated. By then, Guruji had moved to Chandigarh and the doctor had gone for darshan. There one day Guruji said that the sole of his foot was paining. The doctor examined it and found that a particular point was tender and promised to bring an analgesic cream that day. After Guruji refused the offer, Dr. Saini, who was by then a senior advisor in the medicine department, told Guruji that the army hospital had recently acquired a new laser therapy machine and requested that he undergo treatment through it. After some time, Guruji came to the doctor and asked that the laser treatment be given to him for 3 days. The doctor responded that 10 days would help more. And this assertion, Guruji led out what he was up to, telling the doctor that he was really visiting the hospital for the doctor's welfare. What Guruji meant was borne out 2 weeks later. The doctor had chest pain and ECG showed heart changes. Dr. Saini summoned the hospital cardiologist, who advised him to spend time in the ICU as the heart changes foreshadows a heart attack. The worried doctor phoned up Guruji from the hospital. Guruji talked to Mr. Saini, prescribing a remedy. When Dr. Saini came out of the ICU, he went to Guruji inside his room. The master laid him down on the carpet and passed a clean stainless spoon all over his body. Thereafter, the doctor's heart was investigated at the Army Search and Referral Hospital at New Delhi. Battery of diagnostic tests, the treadmill, echocardiograph, the thallium scan reported that his heart was normal. The thallium scan reported that his heart was normal. The yearly clinical investigations the Army compulsorily carries out showed he was symptoms-free and he never required more treatment. The divine healer had thus treated the doctor by inverting the doctor-patient relationship. Guruji had become his patient for 3 days to take laser treatment and had done away with whatever was effaceting his devotee. A blocked artery opens. ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ ਆਂਟੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ शिफ्ट हो गए ਸੀਗੇ। और एक दिन मेरे गेस्ट आए हुए थे, मेरी नीस फैमिली आए हुए थी, और एकदम से डॉक्टर साहब बड़े चुप सी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते पता नहीं मेरी पेन हो रही है, तो मैं हॉस्पिटल जाके टेस्ट कराना है। और मैंने बोला नहीं यार तुम अकेले नहीं जाओगे, और मैं इनके साथ ही हॉस्पिटल गई और इन्होंने अपना इनका ईसीजी वगैरह की थी और चेंजेस आए। और उदों गुरु जी कॉर्डलेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, और ਇਹਨਾਂ ਨੇ हॉस्पिटल से मैनू घर भेज दिता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ कमांडेंट ने कहते नहीं मैम आप घर जाओ तो हम लुक आफ्टर करेंगे। और मैं घर चली गई, और उस तो बाद डॉक्टर साहब ने गुरु जी नाल फोन से गल की होनी है और दसिया कि ऐसा गुरु जी ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मेरा पेन ऐदा हो गई है। गुरु जी कहते आंटी किथे है? तो गुरु जी कहते वो तो घर चली गई है। और गुरु जी का फोन आंदा है, उत्थे घर आंदा है, तो मैं चुकिया, मैं क्या गुरु जी नू प्रणाम किया। और गुरु जी कहते कि सजल किथे है मेरा बड़ा बेटा? मैं क्या गुरु जी घर ही है। कहते ओनू लैके
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਜਾके तू करा के आ। मैं कहा जी गुरु जी, और करा के चले गए और बेटे ने वो कर ਦਿੱਤਾ ਸਭ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੋਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੀਸ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਦੇ ਰਹੇ। तो गुरु जी कहते हैं डॉक्टर किथे हो, क्यों नहीं आंदा। मैं कहा गुरु जी बड़े उदास रहते हैं। कहते उन्होंने लेके आ। उनके गुरु जी ने बुलाया, सॉरी, और मैं आके कहा कि गुरु जी ने कहा कि तुहानू लेके आओ, ते इन्होंने लेके गए। ते गुरु जी कहते तू ऐदा क्यों उदास होया, कुछ नहीं है तेनू, चल तेरा मैं हुणे टेस्ट करदा। तो उन्होंने लटा के तो गुरु जी ने वही चम्मच लिया और पूरा उन्होंने टच करके पूरी बॉडी ते कहंदे चल फिर 99 पॉइंट क्विट। और उस तो बाद फिर इन्होंने जाना शुरू करता। इसी दौरान एक दिन असी जा रहे सीगे ते इन्हां दे कोई 12-1 बजे दा टाइम सी, जिसले वापस जा रहे सी पंचकुला, इन्हां दी कार जेड़ी सी ओदा टायर पंचर हो जांदा है। और इन्होंने कदी इन्होंने कीता भी नहीं सी, कदी आया होया भी नहीं सी इस तरह। और ये जाके उतार अपना करने लग गए, तो मैं भी बाहर निकली, कहते नहीं तू अंदर बैठी रह। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुंदा। ते इन्होंने वो कीता और एकदम पसीनो पसीन हो गए और अपना टायर करके लगा के तो असी घर वापस पहुंच गए। जिसले नेक्स्ट गए गुरु जी दे दर्शन करन लई, ते देखदे ही कहंदे कल फिर गुरुआं ने PMT भी कर दिता। तो एकदम ये गुरु जी चरणा च पै गए। गुरु जी हाँ थोड़ी बहुत किरपा हुई है। हुण मनु टेस्ट ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ब्लॉक हार्टी, हाँ जी नेक्स्ट करूं मैं जी। A blocked heart opens. The Sadguru grace extends to even those who are not his devotees. It is as if everyone's suffering is his own. Take the case of Colonel Madan. Another specialist in medicine who worked with Dr. Saini, Colonel Madan had been a heart patient for a long time. He had already had a bypass done after a coronary artery had been blocked, but Colonel Madan still experienced chest pain and breathlessness, which was threatening to incapacitate him from the performance of his medical duties. It was also found that the bypass channel too was blocked. That was grave news. Brigadier Saini and General Ahuja, another of Guruji's devotees, asked Colonel Madan to see Guruji's refuse. And so Colonel Madan went to Guruji. Guruji gave him his blessings through a copper tumbler and also advised him to wear a necklace with a pendant, blessed by Guruji in the shape of an Om. Colonel Madan's health started improving immediately after a few months when an angiography was done. The result was astonishing. The original or native artery, which the doctors had bypassed, had opened. Dr. Saini met Colonel Madan later in 2003 when he had come to visit Guruji in Empire Estate. In Guruji's spiritual court, the doctor related the story of his miraculous cure to everybody in sincere thanksgiving to the divine healer who saved him. हाँ जी, हाँ जी, ये डॉक्टर साहब के साथ ही इनके कुलीग थे और उन्होंने काफी प्रॉब्लम रहती सी। हमेशा कहते सी, क्योंकि ये बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आके कहना कि ब्रिगेडियर सैनी मेरे तो तब कर्नल थे, कर्नल सैनी मेरे तो काम नहीं हुंदा। ये कहते नहीं ऐसा कुछ करते हैं, तुसी दवाइयां वगैरह उन्होंने चेंज की बट उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मिलिया। फिर एक दिन ऑफिस च आए हुए सी और जनरल आहूजा भी आ जाते हैं और ये कहते दोनों जने कहते हैं कि मदन तू गुरु जी ते जाके ब्लैसिंग्स क्यों नहीं लैंदा। कहंदा जी गुरु जी किते कहंदे मेरे घर ही ते हैगे
अपना दिल्ली ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਕਰਨਲ ਮਦਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। तो ये कहते कि मदन तेरे तो गुरु जी ने बहुत कल्याण किया, बहुत कहता जी कमाल कर दिता गुरु जी ने मेरी सारी आर्टरी खोल दी है और हुन कोई पेन नहीं हुंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस दैट डे ही बिकेम परफेक्टली ऑल राइट। उस तो बाद गुरु जी दी ब्लैसिंग्स उन्हां दे नाल हमेशा। And a leaking heart valve normalized. Dr. Saini wife had suffered rheumatic fever in childhood and hidden from her and from everybody else, her left off mitral valve had borne the brunt of the fever and was leaking. It was her doctor husband who first suspected her problem. Ever since she had an echocardiography done once every 2 years. In 2003, when Dr. Saini was at the Army Research and Referral Hospital in New Delhi as a consultant, his wife complained of breathlessness while walking. The echocardiograph showed a severe degree of leakage, or what is medically known as mitral regurgitation. She was advised to have the heart valve replaced. In the intervening period, she was given medicines to control the symptoms and was told that the drug prescribed Rampril could lead to coughing in certain cases. One day the couple was with Guruji when the lady devotee mentioned that she would not take the medicine as it was making her cough. Guruji simply said, okay. As they were leaving the Sadguru room, he said, I bless your heart. He further advised Dr. Saini to get his wife examined from AIIMS, head of cardiology Dr. Talwar, to remove any doubt. After Dr. Saini had explained his wife's condition to Dr. Talwar, the doctor took her to examine room and spent quite some time in the investigation. He came out of the room surprised. He said that since Dr. Saini had told him of the condition his wife was suffering from, he had taken his time to check for a damaged left valve. But, said the famous doctor, he had found nothing wrong. Guruji divine blessings on his devotee's heart had worked wonder. Dr. Saini says medical since cannot even dream of going what Guruji had accomplished with his sparse words. Sorry, word थोड़े। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी आंटी, आपका ये सत्संग तो बहुत बारीकी से सुनाते थे शैलेंद्र, आप भी अपने मुंह से जरूर बात को सुनाओ। ठीक है जी। एक्चुअली बचपन से मनु नाम भूल गई, प्रॉब्लम हुई थी, मैं प्रॉब्लम भूल गई, मैं उधर नाम भूल गई। तो एनी हाउ, तो मेरे को उस टाइम पे दैट टाइम आई वाज जस्ट 6-7 years old, रोमेटिक फीवर, आई हैड रोमेटिक फीवर। और उस टाइम पे सामने हमारे एक डॉक्टर थे जो कि काफी मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को मेडिसिन देनी शुरू की। लेकिन उस नाल मेरे शायद हार्ट दे उत्ते इफेक्ट आया जो कि पेरेंट्स ਨੂੰ भी नहीं पता सी, मनु भी नहीं पता सी। और जब शादी हुई मेरी तो आई ब्लेस्ड विथ माय सन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड ने डायग्नोज किया और मनु कहते तेन बचपन च कदी रोमेटिक फीवर होया सी। और मेरी मम्मी ने बोला हुआ था कि हस्बैंड कुछ भी पूछते ना तो दस दिन ही होंगे। और मैंने कहा नहीं, मनु नहीं पता जी,
ਡੈਡੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਰੋਮੈਟਿਕ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਬੋਲਤੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਅਰੇ ਹਾर्ट ਚ थोड़ा प्रॉब्लम है। सो बीवियां थोड़ी छिपा लेंदी है ना, पापा लोग सच बोल देते। नहीं वैसे तो चाहे नाम ही मैं छुपाऊंगी, लेकिन माँ ने इंस्ट्रक्शन दी हो इसीलिए इस करके मैं चुप रही। और उस तो बाद इन्होंने काफी मेरी केयर करनी शुरू कर दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, इसीलिए फिर मेरा सिजेरियन हुआ बड़ा बेटा। और उसको फिर एवरी 2 years मेरे इकोकार्डियोग्राफी ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, और कोई मेडिसिन वगैरह नहीं कुछ लाने की लोड़ पई, और एक इंजेक्शन देंदे सी जो कि 1 साल तो बाद या 2 साल बाद देंदे सी। उस तो बाद मैं ठीक रही। और जब गुरुजी एम्पायर स्टेट थी तो एक दिन वॉक कर रहे सी ਅਸੀਂ दोनों दरबार जाने तो पहले, और एकदम ਮੈਨੂੰ ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो मैं इन्होंने किया, मैं क्या मैनू आज बड़ी ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो कहते कोई नहीं कल तेरी इकोकार्डियोग्राफी करानी है तो पता लग जाएगा। तो जिसले कराई तो फिर डॉक्टर ने ऐसा दसिया कि थोड़ा लीकेज हो रही है। तो मैं क्या फिर अदा की करोगे? कहते तुहानू एक दवाई हैगी है रैमप्रिल, तो यह लैनी पेगी। तो मैं क्या फिर ओहदे नाल की होएगा? कहते ओहदे नाल हो सकता है किसी किसी नू खांसी हो सकती है। मैं चुप रही। शाम नू जिसले गए गुरु जी को, तो गुरु जी सेवा ले रहे थे, गुरु जी सेवा करते हुए मैं क्या गुरु जी आज मैनू इन्होंने एक दवाई दी है, पता नहीं की रैमप्रिल की ना कह रहे, मैं नहीं खानी। कहते क्यों नहीं खानी तू? मैं कहनी गुरु जी कहते और ना कईयां नू खांसी हो जाती है तो मैंने नहीं खानी। तो कहते की होया तुहानू? तो गुरु जी तो सब पता था उन्होंने। मैं गुरु जी बचपन च एक फीवर होया सी, उस तो बाद कहते मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई है। उस तो बाद गुरु जी चुप रहे। तो बैठे थे गुरु जी, हम दोनों ने सेवा की थी। जो ही उस टाइम ते संगत दा टाइम हो गया सीगा, गुरु जी कहते चलो फिर बैठो तुसी। तो जो ही स्टेप किया तो गुरु जी कहते जा तेरा हार्ट ब्लेस किया। एकदम मैं पीछे तो गुरु जी स्माइल दी थी गुरु जी ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहते जाके डॉक्टर तलवार को अपने आर्मी हॉस्पिटल नहीं जाना, तो एम्स विच डॉक्टर तलवार को जाके तो टेस्ट करवा। तो उदो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बॉम्बे जाना सी और अपने टेस्ट ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कराई। पहले आपने बॉम्बे टेस्ट करवाया, उस तो बाद तू डॉक्टर तलवार को जाए। और जिसले बॉम्बे तो ਅਸੀਂ वापिस आए तो उस तो बाद मैनू डॉक्टर तलवार को ले गए, और इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है। तो डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन करना शुरू करता और देख रहे हैं अपना स्टेथोस्कोप नाल। वो तो एक स्टूडेंट भी देखे तो मरमर जड़ी है वो पता लग जाता है कि की प्रॉब्लम है। और उन्होंने पुछना नहीं कहता, और मैं अंदर च कहा तो तुसी की करना है? मेरे गुरु जी ने तो कर दिता जो करना सी ठीक। और मैं अपने मन च अच्छा करी जा रही हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड कहते चलो एक बारी इन्हां दी तुसी भी करवा दो, इकोकार्डियोग्राफी करा दो तो और थोड़ा श्योर हो जाएंगे। वो कहते डॉक्टर साहब वो क्यों करानी है, सब ठीक है। फिर भी उन्होंने कहते चलो करवा लो। करवाई तो कहते माइनर कुछ हो सकता है पर अदरवाइज परफेक्टली ऑल राइट। और वो भी कराया और सब ठीक आया। और बस गुरु जी दी ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की ब्लेसिंग ही सबसे बड़ी है। देखो आप वो तो अपना एक नजर से ही ठीक कर चमचे दिखाने के लिए एक ही मन में दुख रहा है कि यही सोचते सीगे कि असी चले जाएंगे बच्चों ਨੂੰ गुरु जी संभालेंगे, पर पता नहीं क्यों गुरु जी हम सबको इतने जल्दी छोड़ के चले गए। है तो गुरु जी आज भी है, विराजमान है, पर वो जो जिस रूप के गुरु जी नु हाँ बिल्कुल वो तो हम मिस करते ही हैं। वो दर्शन बहुत मिस करते हैं। कई बार लगता है कि वो हमारे गोल्डन डेज थे जो कि असि आज मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो गुरु जी ने जो सोचा उन्होंने वही करना था। कहते होंगे सी मैं अपनी फाइल आपे लिख के ले आना है और आपे बंद करके ले जाना है। हाँ तो गुरु जी ने वही किया। हाँ जी हाँ जी चलो नेक्स्ट है medical technicians are blessed. One day in 1998, Guruji informed Dr. Saini that he would be coming in the evening to the military hospital at Chandi Mandir for a blood checkup and ultrasonography.
The blood test was done. The technician, an old hand, was surprised. He found that even on repeated examination of the blood sample for blood sugar, the reading was coming to 8 milligram to 15 milligram. The technician knew this was way below the normal limits, and at these levels, a man could not survive. He told Dr. Saini that this patient could not be from Earth. Guruji blessed the technician and told him that he would be promoted as the subsequently was. A radiologist from Bhatinda, Major Sinha, was a similar beneficiary of Guruji's grace. The radiologist was on temporary duty at Chandi Mandir. When Guruji came in for a ultrasound, Major Sinha did the ultrasound of the abdomen and concluded it was normal. Guruji blessed him, saying he would have 2 sons and would get promoted to the rank of Major General. An uncomprehending Major told Guruji he had 1 son and that was sufficient. In 2004, Dr. Saini met Major Sinha in the Research and Referral Hospital, New Delhi. Major Singh was now Lieutenant Colonel Sinha and was training in nuclear medicine at the Army Hospital. Dr. Saini asked him if he remembered Guruji's blessings. His colleague did. In fact, he told Dr. Saini that at that time, Guruji had made his remark. His wife had been told by a gynecologist that she could not have another child, but she had thanks to Guruji's blessings. हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली ये जब हुआ है, हाँ जी, एक्चुअली इस वाले इसके बाद आपने आई थिंक यू हैव मिस्ड 2 पैराग्राफ्स 2 मोर दिस थिंग यू नो। अच्छा, सॉरी, कोई नहीं, मैं करता हूँ, वो बात करना, बात कर लेना। सॉरी। एक्चुअली ये जब थे अपना गुरुजी टेस्ट कराने आए तो मैं भी वहीं पे थी, गुरुजी डॉक्टर साहब दे नाल गई हॉस्पिटल और गुरुजी का फोन आया कि मेरा टेस्ट करवा दे। गुरुजी कहते ठीक है, और इन्होंने अपने टेक्नीशियन ਨੂੰ फोन ਕੀਤਾ कि ऐसा भी VIP आ रहे हैं और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। कहते कोई नहीं सर, मैं ड्यूटी ते हैं, ਤੁਸੀਂ ले आओ उन्होंने। और जिसलिए गुरुजी आए और गुरुजी ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸੀਗੀ। और जिसले टेस्ट किया और ले गए तो गुरुजी कहते जा डॉक्टर देख क्या की कहते ने हो, और ये गए फिर आए फिर गए। तो जब गए तो बड़ा परेशान, कहता सर मैं इतने टेस्ट रोज करदा, हजारां च हुंदे ने, बट जिन्हां दा टेस्ट कीता है ये इस धरती दे नहीं है। और ਇਹਦੇ ਚ पहले मैनू विच गुरुजी ने एक बार भेजा जा तू देख के आ, तो फिर गुरुजी आपे आ गए ऊपर। तो जिसले वो बोल रहा था गुरुजी डॉक्टर साहब नु दस रहे सी, तो गुरुजी दूर स्माइल देके कहंदे की तेरा रैंक है? कहंदा जी मैं लाइस नाइक है, जो भी था उसका रैंक। कहंदे चा तेनू नेक्स्ट रैंक दिता, तेनू ब्लेस किता। और उस तो बाद फिर एक दिन फिर गुरुजी दा फोन आया कि मेरा अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, तद भी मैं ਨਾਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। और मैं गई तो गुरु जी कहते कि मैं टेस्ट करा रहे हैं। और जिसलिए उन्होंने इन्होंने एब्डोमेन टेस्ट किया, स्कैनिंग की थी, कहते सब कुछ ठीक है। गुरु जी कहते किन बेटे? कहते जी एक है। कहते चली खोड़ तेन ब्लैस किया? कहते नहीं जी खोड़ नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने इशारे नाल किया कि तू बोल मत, महापुरुष है तो ऐसा जवाब नहीं देना। वो चुप हो गया। उस तो बाद कहते जा क्या रैंक है तेरा? कहना जी मैं मेजर है। कहते चल तेनू मेजर जनरल बनाया। और गुरु जी ने ऐसा ब्लेस किया। और जिसले अपना वापिस गए तो वो कहता सर, कहते तू उनसे गुरु जी से कह रहा था कि गुरु जी ने जो बोला है वो अपना उनकी जो वचन होते हैं बिल्कुल सही ही होते हैं और उनसे बहस नहीं करते महापुरुषों से। कहता सॉरी सर मैंने ऐसे जवाब दे दिया। फिर 2004 च जो मिलते ने तो तद इन्होंने पूछा, कहते कितने बेटे? कहता जी 2।
कहते उस टाइम पे तो क्या कहता, सर मैंने इसलिए क्या, क्योंकि एक्चुअली डॉक्टर्स में बहुत अब्रॉड था कि मैं टेस्ट कराया से, तो उन्होंने कहा सी शी कैन नॉट बी ब्लेस्ड। कहते ले देख ले फिर, कहते नहीं है तो गुरु जी की बहुत कृपा हुई है। और उस टाइम तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीगा, गुरु जी कहते चल फिर हूं तो मेजर जनरल भी बन जाएगा। हाँ, तो उसको हो गया। बिल्कुल सेम मुझे भी याद आ रहा है एक सत्संग हाँ जी, जैसे गुरु जी का ये टेस्ट वगैरह हुआ और इतना कम उनका हेमोग्लोबिन और ये सब निकला, जो हाँ भी जी, हाँ टेस्ट जी, हुए हाँ जी, तो हाँ जी, जैसे हाँ तो जी, एक बार गुरु जी जो है वो यहाँ का सीताराम हॉस्पिटल है, वहां पे अचानक ही हाँ कहने जी, लगे उधर उधर चले गए और वहां पे एडमिट हो गए। कहने लगे मैंने हाँ। एडमिट कर दो और मेरे सारे टेस्ट करवाओ। ये काफी बात की बात है जब सुल्तानपुर में आ गए थे गुरु जी, काफी लेट बात। सीताराम भारती में मेरे ख्याल है ना। सीताराम भारती में, हाँ सीताराम भारती। सीताराम। और बहुत ज्यादा संगत को पता भी नहीं था, अचानक ही बस गुरु हम्म। जी चले गए वहां। कृपा हुई हम लोग के ऊपर भी कि बस वो, मैं भी दिन भर की ड्यूटी करती थी और रात को ज्यादा से ज्यादा ऐसे जोशी अंकल भी रहते थे उधर ही। और हाँ जी, हाँ आते जी, जाते रहते थे, सुधा आंटी विप्पी वगैरह सब लोग, आना जाना होता रहता था जिसको भी गुरु जी की हुक्म होता था। तो वहां पे भी गुरुजी के सारे टेस्ट हुए, यही सब करे। वो तो गुरुजी ने वहां का कल्याण करना था, जैसे कि सभी को पता होता है। हाँ जी, उनको हाँ क्या जी, होना है, कुछ भी नहीं। तो हाँ जी, यही इतना ही कम निकला और वहां के लोग सब हैरान कि इतने कम जो ये सारे मापदंड हो रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी सरवाइव ही नहीं कर सकता इस धरती पे। तो हाँ ये तो जी, हाँ यहाँ की है ही नहीं जी। तो सारे हाँ आश्चर्य करते थे और गुरुजी जैसे आप बोल रहे कि चुपचाप खड़े होकर मुस्कुराते रहते थे। और गुरुजी तो अपनी लीला दिखाते थे, सबको कल्याण करने के लिए वहां पे एडमिट हुए थे। तो वो हाँ भी जी, वो वाकया मुझे याद आ रहा था, तो हाँ मैं जी, सोचा हाँ बताओ। हाँ चलिए जी। आप आगे बढ़िए। Adamant cancer wilts. In May of 2002, Dr. Saini was diagnosed with a severe type of cancer, non-Hodgkin lymphoma, NHL, known for its resistance to treatment. The cancer attacks the endocrine system. The doctor received treatment for 9 months. He did not feel the side effects of chemotherapy and a patient of NHL. His quick response to the treatment surprised even doctors. Eventually, Guruji's blessings were secretly at work. Within a year, the disease went into remission. But in 2004, 3 lymph nodes in his right groin swelled up again. A PET scan showed cancer cells. The glands were operated upon and taken out. The doctor was then advised to go for a bone marrow exam. He prayed to Guruji and the merciful master gave him the date for the examination. The doctor feared that if the results came positive, he would have to undergo chemotherapy again for 5 months. However, thanks to Guruji blessings and the doctor's huge relief, the test was negative. हाँ जी, And ये मेरे हस्बैंड लखनऊ पोस्टेड हुए, तो वहां जाते ही उससे कलकत्ता से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, बैक में पेन स्टार्ट हो गई थी। बट इन द मीन टाइम इनकी प्रमोशन होके तो इनको लखनऊ आ गए। और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया वो बड़ा ऐसा ही था, जिसमें कि काफी पहले जो 2 ब्रिगेडियर्स थे वो सैक हुए थे। और इन्हें गुरुजी के कोल गए, कहते गुरुजी मेरी स्पेशलिटी ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀਗਾ। तो कहते गुरुजी मैं तो नहीं है करना। तो गुरुजी हंस पे कहते कोई नहीं तू जा। तो चले गए हम लोग, लखनऊ चले गए। और इन्होंने जाके अपने ऑफिस से सबसे पहले गुरुजी की फोटो रखी, गुरुजी तुसी संभाल लो, मैं नहीं करना है काम, क्योंकि काफी गपले वाला काम ਸੀਗਾ। और ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ दैट ਪੀਰੀਅਡ ਓਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। और डायग्नोसिस ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ट्यूबरक्लोसिस लग रहा है, तो ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ हुआ और
बिल्कुल ठीक नहीं हुए और पेन ज्यादा हो गई। और फिर उन्होंने डायग्नोज किया कि नहीं, ये तो NHL है। और गुरुजी ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ है ना आ गए RR हॉस्पिटल, उन्होंने उतो भेज दिता। और मैं भी आ गई उत्थे हार्डली, फिर लखनऊ रहे और आके 9 months आई थिंक ही स्टेड इन RR हॉस्पिटल। और गुरुजी ਦੀ ਕਿਰਪਾ, रोज गुरुजी कुछ ना कुछ कदी प्रसाद भेजदे सी, कदी आहूजा आंटी दे थ्रू अपने फ्लावर्स अपने भेजदे सी कि अरे नाल ओनू कह नहाया करे। और रात नू जिसले प्रसाद भेजना, मैं और सजल असी रात नू कदी 12 ਵਜਣ 1 ਵਜਣ और जिथे कि हॉस्पिटल से तुसी एंटर भी नहीं कर सकते और सारे डोर खुले हुंदे सीगे। मतलब जैसा सिस्टर देखदी ही नहीं, पता ही नहीं लगता सी कि कौन आया कौन गया। तो इन्होंने प्रसाद देना और आ जाना वापस। ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ मैं फोटो देख के ते मैं दस देना हैगा कि की प्रॉब्लम है और मैं दवाइयां दसदा है और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अच्छा। और मनु कहंदे कि तू जा। मैं क्या कि देखो मैं तो जाना नहीं चाहिए, मैं तो गुरु जी दी आज्ञा तो बिना मैं जानू। कहंदे नहीं, गुरु जी ने पूछ के तो तू जा। और ऑफ डेज विच कई बारी गुरु जी बुला लेंदे सी मनु और सजल नू भी। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਆਂਦਾ ਫੋਨ ਅਰੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ और डॉक्टर साहब देख के कहंदे वो दस दिंदा की बीमारी है, फोटो देख के और दवाइयां भी दे दिंदा। तो गुरु जी कहंदे अच्छा ऐदा भी हुंदा। मैं कहा गुरु जी मन ते पता नहीं कह रहे है। और कहंदे ऐदा कर तू मेरी भी फोटो नाल ले जा। और मेरी भी फोटो देख के कहीं पूछी कि मन्नू की होया। तो गुरु जी ने मनु अपनी फोटो तो कहते है तेरे को फोटो। मैं क्या हाँ गुरु जी मेरे को फोटो है। कहते तेरे को इन्ने पैसे लेगा वो तो जा फिर तू। मैंने कहा गुरु जी सजल लेके नहीं जाता। तो सजल साथ में गुरु जी कहते सजल जा आंटी मम्मी नू लेके जा उत्थे कुमार स्वामी दे। असी दोनों गए उत्थे और उन्होंने मैंने ऑफिस च बिठाया। मेरी कॉल जिसलिए आई तो मैंने उन्होंने ऑफिस च भेज दिता। उत्थे देखा कि कोई भी नहीं है और मैंने फोन पकड़ा दिता। मैं क्या मैं जो भी स्वामी जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। और उन्होंने गल्ला च मेरे मुंह निकलवा लिया। तो कहते अच्छा ये प्रॉब्लम है। मतलब इस तरीके ना कोई समझ नहीं किस तरह गल्ला च उन्होंने मेरे मुंह निकलवा लिया। और फिर अजी ये दवाई ये लिखो पूरा पेज भर देता। मैं क्या मैं फिर बोली मैं क्या इन्नियां दवाइयां तुसी लिख देती हैं, मैं तो नहीं देनी है ये तो मेरे गुरु जी ने ही ठीक कर देना, उदा ही ठीक कर देना। कहते केड़े तुहाडे गुरु जी। मैं क्या जलंधर वाले गुरु जी। कहते लै फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो गुरु जी ने सब कुछ कर देना। जिसले मैं आई तो गुरु जी मैनू कहंदे फिर की कहंदा मेरी फोटो देख के। मैं क्या गुरु जी ना तुहाडी फोटो देखी ना डॉक्टर साहब दी देखी और वो कहंदा कि गुरु जी ने ठीक कर देना। और उस तो पहले मैं एक दिन गुरु जी ने कहा मैं गुरु जी मैं कदी डॉक्टर साहब नू कदी देखा नहीं कोई गलत काम करदे, बल्कि दुनिया दी लोकां दी पेशेंट दी सेवा करदे आए, फिर इन्हां नू ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। कहंदे ये रहिंदे पिछले कर्मां दा। तो मैं क्या गुरु जी अगर पिछले कर्मां दे ते कहंदे मैं क्या फिर गुरु जी कैरी फॉरवर्ड क्यों हुंदा, नाल दे नाल ही खत्म कर देना चाहिए। कहंदे नहीं ऐदा नहीं हुंदा, ये ते विधि दा विधान है। तो कहते ठीक करन नू मैं 5 मिनट च ठीक कर दें, पर इनू मैं करना नहीं है क्योंकि अगर इनू मैं ठीक करांगा मैं अपने उत्ते लवांगा ते अगले जन्म च फिर तो ये तकलीफ लैनी पैंदी है। मैं गुरु जी दे चरण स्पर्श कीते, थैंक्स कीता गुरु जी नू। और कहंदे जा फिर ओनू जदों मैं मिल के आए तो गुरु जी कहंदे जा ओनू जाके लेके आ कुमार स्वामी। अच्छा। मैं अपने मन च गुरु जी मैं कित्थों लियावांगी, मैं तो कहंदे बंदे शक्ल देख के कहंदे छड़ परा तेरे तो नहीं हुंदा, और मटका लेके आएगी मटकन आंटी। और सच्ची मटकन आंटी शाम नू ले आई ओनू क्योंकि उन्हां दे जेड़े ब्रदर सी चंडीगढ़ हुंदे सी, उन्हां नू फोन कीता और मटकन आंटी गई और शाम नू आ गई।
और गुरु जी बस मेरे वाल देख के मन कहते देख ले इशारे जिस तरह गुरु जी करते होंगे सी वही स्माइल देके कहते ले आ गया ना। फिर उस तो बाद फिर उन्हें आना शुरू करता। गुरु जी ने ओदा भी इन्ना कल्याण किया, इतना कल्याण। एक दिन कहते मेरा खैड़ा ही नहीं छड़दा पिया, ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਲਗਵਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹ। और उन्हें आके पूरा दंड उस दिन जिस दिन पहली बार भी मिला दंडवत प्रणाम किया उस दिन भी आके गुरु जी कहते जा हूं तेरा कल्याण कर देता है, हो गया बस जा। तो उस दिन भी गुरु जी कहते मेरा खड़ा ही नहीं छड़दा पिया, मेरे पीछे प्यादा रहंदा है। तो गुरु जी की मेहर है, गुरु जी बहुत कल्याण करते ने। ये हमारे सब कुछ है, मतलब वर्ड्स भी नहीं है कहने दे कि सचमुच। नेक्स्ट है Sadhguru extends life of Doctor's mother. Dr. Saini's mother was suffering. She had a carcinoma in her breast, heart disease and rheumatoid arthritis. By the end of 2000, she was in poor condition. She suddenly collapsed one day and had to be taken to a private hospital. She was in shock. Her heart had stopped and her blood pressure and pulse were barely recordable. While events were unfolding thus at home, Dr. Saini's niece was at Jalandhar temple. She was weeping silently since she knew her grandmother's life was fading. The omniscient Guru, sorry word मैं गलत बोल गई हूँ शायद, omniscient Guru, however, forestalled the grandmother's demise, telling the niece that her grandmother's life had been extended by 5 years. Even as Guruji spoke in the hospital, Dr. Saini's mother showed remarkable sign of recovery and she lived for 5 more years. The Guru's kirpa or grace is extraordinary. It is like God in his mother, except her heart weeps for the misery her children go through, and though they may be good or bad, they may be her devotees or they may be atheists neck deep in materialism, her Shakti, her divine power rushes to their aid. हाँ जी, ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ का है। और हम लोग उस टाइम पे आई थिंक वी वर इन दिल्ली में थे या कहीं और थे, वो एकदम आते कॉल आती है कि मदर की तबीयत काफी खराब है और मेरे हस्बैंड चले गए। और जब वापस गए तो उस टाइम पे शी वॉज क्वाइट इन बैड शेप और बीच में बिल्कुल ठीक भी हो गए। तो लेकिन फिर से दोबारा उनको हुआ, तो तभी मेरी नीस जो गुरुजी जी काफी भगत है, वो वहां पर जाती है, मंदिर जाती है और शी वॉज क्राइंग। तो गुरुजी कमरे च सीगे और सुदामा अंकल ने देखा तो कहते मंजरी तू क्यों रोंदी पई है? कहते नहीं मेरी नानी बहुत बीमार है, डॉक्टर्स ने उन्होंने जवाब दे दिता है कि नहीं बच सकती। तो इन्नी देर च गुरु जी बाहर आ जाते हैं। तो गुरु जी कहते तू कितना आ गई? तो शी वॉज क्राइंग, कहते गुरु जी मेरी नानी नहीं बच रही, वो कह रहे डॉक्टर्स कह रहे कि बचेगी नहीं। गुरु जी कहते जा तेरी नानी नू 5 साल दिते। और बाद जिसले दसदे हुंदे सी गुरु जी आए, मैनू बहुत दुख हुआ। मैं कहा गुरु जी तुसी इस तरह क्यों करदे हो? अपनी उम्र तुसी दे दे के दूसरियां नू। कहंदे मैं थोड़े देना, मैनू हुक्म हुंदा तो मैं दे देना। अब ये तो गुरु जी जानने, गुरु जी की पतलीला है क्या है मालूम नहीं। पर खैर वो 5 years पूरे एग्जैक्ट 5 years ही सेव्ड। पूरे 5 साल बाद उन्होंने शी लेफ्ट द बॉडी। हाँ जी, हाँ जी। Now you can read the last paragraph. I think that one is saved and saved again. Yeah. The Sainis were returning to Chandigarh after visiting Guruji in New Delhi. The Delhi-Chandigarh highway was then one-way road.
They had left the Sangat quite late at night, and the family was dozing off in the car. Dr. Saini too suddenly fell asleep at the wheel. Their car veered off to the right, straight onto the path of a truck. His wife's hand suddenly brushed his shoulder, and the doctor woke with jerk. He reflexively turned the car to the left, and the truck passed by, missing them by inches. When they were all asleep, who had been awake, which unblinkingly eye had seen the truck, and who had reached the sleeping wife's hand to move and alert the doctor? The answer was very clear in 2004. तो एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन लेके वापस जा रहे थे, मेरे ख्याल जा रहे थे हम चंडीगढ़ वापस, तो काफी लेट हो गया हुआ था और इनकी आंखें थोड़ा नींद बंद होनी शुरू हो गई और मैं आई वॉज अवेक, बच्चे दोनों पीछे सो रहे थे। एकदम मैं देखा कि सामने ट्रक आ रहा है और इनकी आंखें बंद हो रही हैं, तो एकदम से मैं कौन होती है, मेरे गुरुजी ने मेरे थ्रू इन्होंने एकदम मैं जग दिया, मैंने कहा उठो, सामने ट्रक आ रहा है। तो एकदम से इन्होंने अपनी व्हील अपना जो स्टीयरिंग इतनी दूसरी साइड थे और गुरुजी ने सबकी जिंदगी बचा दी। रियली गुरुजी दा बहुत हर चीज ਲਈ गुरुजी ਦਾ हर पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना। अभी नेक्स्ट है, the answer was very clear in 2004. Guruji had told Sajal, Dr. Saini's dentist, who was posted at Sona, to take furlough from his medical duties. At that time, Sajal used to travel to the bus stop on his scooter and then take the bus to Sona. It was the month of August and the road was wet. Sajal was coming on his scooter to home when he swerved to avoid a reversing vehicle. Only collided with another. He fell off the scooter. The Sainis meanwhile were with Guruji and he suddenly asked them where their son was. They told him he must be coming home from office. Just then the Sainis' phone rang and Sajal's wife told them of the accident. They immediately went home, but Sajal had been saved. He had been carried from the accident spot to home by helpful onlookers, in itself a rarity in Delhi, and he had nothing worse than a few stitches on his nose. From the hospital, he directly went to Guruji in thanksgiving for saving him. Sajal now says that his birthday should henceforth be celebrated on the day Guruji saved him, for he had been granted new life. ये 2004 की बात है। हाँ जी, 2000 गुरुजी ऑफ डेज ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, और एक दिन अरे एक्सीडेंट तो 3-4 दिन ही मतलब 10-15 दिन पहले ਦੀ ਗੱਲ, गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ सजल ਨੂੰ ਕਹਿ ਫੜਲੋ ਲੈ ਲਿਆ करे। तो मैं क्या गुरुजी फड़ लो मीन्स कहते बस चला जाया करे अपना और आपे साइन लग जान करनगे, और मैनू किया और एने जिस तरह गुरुजी ने किया उस तरह ही कीता। ਇਹ नहीं जानदा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੋ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ बोलो। सो जिस दिन एक्सीडेंट उस दिन भी मैं गुरुजी ਦੇ ਕੋਲ बैठी सी, डॉक्टर साहब भी बैठे दे ਸੀਗੇ। तो गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ आज सजल किथे है? मैं क्या गुरुजी सोना गया। जिस दिन ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ तो बड़ा खुश ਹੁੰਦਾ क्योंकि और काफी पेशेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ और ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰਜੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो गुरुजी ऐसा कहते ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਸ਼ਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ और वो रो रही ਹੁੰਦੀ है फोन ਤੇ एकदम ਕਹਿੰਦੀ मम्मा सजल का एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं क्या गुरुजी सजल ਦਾ एक्सीडेंट ਹੋਇਆ। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ। तो ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸ਼ਮੀ? ਕਹਿੰਦੇ गुरुजी ਉਹਦਾ ਸਜਲ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
मन्नू और सजल डॉक्टर साहब ने कहते जाओ तुसी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हॉस्पिटल लेके जाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਣੀ। तो गुरु जी डॉक्टर साहब ने कहते डॉक्टर साहब जाओ तुसी फटाफट जाओ। तो मेरे हस्बैंड जाते और जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा है, एरा हेलमेट निकल के किते दूर गिरया और एरा स्कूटर बिल्कुल पिचक गया और एक थ्रो होके तो काफी दूर जाके गिरा है। और जिन्होंने देखा है एक्सीडेंट देखे, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही सी तो कुछ लोग बालकनी च खड़े सीगे, रेजिडेंस एरियाज विचों आ रहे थे। वो कहते मिराकल हुआ है कि ये बच्चा बच गया है, नहीं तो जिस तरीके ना एक्सीडेंट हुआ है पता नहीं क्या होना था। और जिसले डॉक्टर साहब गए तो गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब सजल नु लेके तुसी इत्थे लेके आओ। तेरे स्टिची लगे अपना नक दे उत्ते होया, मुंह स्वेलिंग हुई, पर सब सफिशियल सीगे, ज्यादा कोई ऐदा ना होया कुछ भी। पर फिर भी इन्होंने सारे टेस्ट उस कराए, एवरीथिंग वाज फाइन। और जिसले गुरु जी को लाए तो मुंह मेरा सुजया था। ते गुरु जी कहते फिर सजल की हो गया, जा न्यू लाइफ दी थानू। तो फिर कहते सेवादार नु कहते चलो इनू चाय प्रसाद दो। फिर उन्हें बिठाया, काफी देर बिठा के गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया और फिर कहते जाओ इनू कर लो जाओ। बस वो दिन तो सजल कहता कि मेरी न्यू लाइफ गुरु जी ने दी है। और मेरा बर्थडे जरा तुसी 25 अगस्त था। तो बस गुरु जी दी बहुत मेहर है, बहुत ही कृपा है, बहुत ही कुछ किया गुरु जी ने। मतलब कि होर कुछ नहीं चाहिए हुण, बस गुरु जी दा प्यार जिस तरह मिलता रहे वही मिलता रहे। गुरु जी अपने नाल रखन, अपने चरना च रखन। अगर कोई गलती होगी हो कुछ गलत तो माफी मांगती हूँ गुरु जी से भी, आप सब से भी। बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर तरीके से आप बताते हो सुनीता। तो वाई आर हेजिटेटिंग, वाई नो नेवर। सो अच्छे से आपने गुरु जी के बारे। और मैं तो ये कहना चाह रही थी लास्ट में कि ब्रिगेडियर सैनी जैसा बंदे, जैसे इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इतने गुरु जी के प्यारे, ऐसे बंदे सचमुच में बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग को बहुत उनके साथ बहुत नजदीक से रहने का मौका मिला। और गुरु जी के इतने ज्यादा भगत और इतना उनको कहना मानते थे वो। और हुक्म था उनको कि कोई, उन्होंने फोन नहीं रखना, उन्होंने मोबाइल फोन नहीं यूज करना। तो उन्होंने बिल्कुल कभी छुआ तक नहीं फोन, कभी मोबाइल फोन अपने हाथ में नहीं लिया उन्होंने। कभी कॉल आ जाती थी, कोई अर्जेंट बात है तो सुनीता से कहते थे कि वो अपना स्पीकर ऑन कर दे और उसमें बोल देंगे, लेकिन अपने हाथ में कभी नहीं लेते थे। सिर्फ घर में वो अपना लैंडलाइन फोन यूज करते थे। और अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल लास्ट तक गुरु जी का हुक्म माना। ऐसे डिवोटी होना भी एक अपने में एक सचमुच में पूर्ण समर्पण था उनका गुरु जी के प्रति। वो सीखने लायक बात थी। और बहुत बहुत उनको, उनकी याद हम लोग तो हर समय, हम लोग काफी गुरु जी ने सचमुच में, ये कुछ ऐसे जन्मों के साथ होते हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन इन चीजों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अंतर, हमारी आत्माएं पहले कभी एक साथ होंगी। अब भी गुरु जी ने सबको साथ रखा हुआ है। बहुत बहुत कृपा गुरु जी की सबके ऊपर। इसी तरह गुरु जी अपनी, पर गुरु जी की बहुत कृपा है कि जिस तरह दी उन्होंने प्रॉब्लम सी, गुरु जी ने फिर भी उन्होंने 19 साल दिते, 18 साल दिते। 2019 च ही लेफ्ट। तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि चलो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी बिस्तर में नहीं पड़ना। उस तो बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं उन्होंने। अंदरों से होएगा ही, कमजोर तो होंगे गए दिन ब दिन, बट अदरवाइज गुरु जी के साथ तो उनका ऐसा रहा। और उन्होंने बॉडी भी है, और उनका जब हुआ भी, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, और आर्मी वालों ने भी आके उनका पूरा रिगार्ड दिया, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा। और वहां पर उनको पूरा ऑनर दिया, कमांड की हॉस्पिटल से भी और कमांड से भी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी है, सब 2 जगह से आके उन्होंने उनको ऑनर दिया।
सो सब गुरु जी की कृपा से ही है, सब इस पर।